we'll start. Today we'll start with chapter number 2, mathematical methods. So what is mathematical methods? Mathematical relates to what? Yes, anyone? Mathematical methods. How do you understand these terms, these two terms? Anyone? Methods which are more grounded in maths, but which are used in formulas for physics. Okay. Okay. Yes, anyone next? Good. I want in see what in similar or easier way to understand. I got your point, but still I want it in easier way. Yes, anyone next? What is your understanding about these two words? Forget about maths or physics. What do you understand by these two words? Mathematical methods. Yes, आंसर करो। आप कोई भी, आपको क्या समझ में आता है आप बताओ, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग. नो प्रॉब्लम, गो फॉर इट. वैष्णवी, साई, शारिक, श्रुति. श्रुति तेरा माइक ठीक हुआ क्या? निधि, एनीवन प्लीज गो. टेल मी व्हाट, आपको क्या समझ में आता है इससे? क्या मतलब आप क्या समझते हो इसको? The method which is used to find a definite value of a Okay. sum. Okay. And what is mathematics? Or mathematical methods. See, I'll make you easy. Mathematical is counting. You can say counting, or you can say the procedure. Or I can say process like adding, subtracting, multiplying, and dividing. Methods. We have to follow certain rules, certain path, certain way to reach to the solution. Getting it? एक पर्टिकुलर तरीका होगा कोई भी चीज को, कोई भी मेथड को या कोई भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच. So there is a process or there is a team plan how to tackle and how to defend and how to reach to the opponent goal, isn't it? कि कैसे भी बॉल को कैसे भी पास करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा गोल तक. There are definite ways. So there is a particular way, there is a fixed strategy, there is a fixed plan by which we can lead to a victory. Similarly, in physics, we have certain laws जो डिराइव कर किए हुए हैं या डिराइव करेंगे. तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक मेथड है कि उस तरीके से हम वो तरीके तक या उसके गोल तक या उसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे. देन वी कैन रीच द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर. सो वी हैव टू फॉलो पर्टिकुलर way, a particular path, and we have to follow the particular procedure to reach to a particular or to reach to a goal or to reach towards the conclusion. In this chapter, we are going to see mathematical methods for vectors. Now, can anyone say what are vectors? Viraj, what are vectors? Vector quantity. It is a quantity which has direction and magnitude. Correct. For example, very good, Vaishnavi. For example, you can give me any example. Displacement. Yes, very good. Displacement and velocity. Sabash, very good. So vectors are the quantity which has
which has magnitude as well as direction. So we have many vector quantity. So velocity, we have displacement, we have force, correct, etc. We can say they are a vector quantity, correct. So scalar quantity क्या होगा? What is a scalar quantity? Physical quantity that does not depend on They are direction. called as also the fundamental quantities which do not depend. Yes, very good. Which do not depend on the any other quantity for the measurement. Very good, Sabash. The quantity which do not depend on any other quantity for the measurement are called as scalar quantity or fundamental quantity. There are 7 fundamental quantities. Shlok, 7 fundamental quantities कौन सा है? Length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current, और सातवां वाला amount of substance. शाबाश, वेरी गुड. इसके बाद और 2 निकाले हैं हमने. सप्लीमेंट्री है, वो कौन बताएगा? सही. 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज निकाले थे. विचार दे. दो सप्लीमेंट्री एंगल किसी को मालूम है? They are also the Plane angle, solid angle. Plane angle and yes, very good. Plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle. चलो. Now ये chapter में we will only discuss about the vectors. Now how the vectors can be added because they have direction. If we have magnitude, we can add anything with the same units. We can add kg added with kg, second added with second, and magnitude. If we have magnitude, we can add 2 quantities. But there is a problem, or we should learn how to add the quantities with magnitude as well as direction. So this is what we have to learn in this chapter. We have to learn how to add vectors, how to multiply vectors. In this chapter we will see this only. Okay, so basic thing is vector analysis 2.2. 2.2 page number 16, topic number 2.2. I'm going through this 2.2 point. In the previous chapter you have studied a different aspect of physical quantities, like their division into fundamental and derived quantities and their units and dimensions. You also need to understand all the physical quantities may not be fully described by their magnitude and units alone. For example, abhi samajhna dhyan se. You are given the time for which a man has walked with a certain speed. You can find the distance traveled by the man, but you cannot find out where exactly man has reached unless you know the direction in which man has walked. So basically, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि तेरे को डायरेक्शन का भी उतना ही जरूरत है. To find out the exact location, we can find out magnitude. कितना distance he has covered, we can find out. But unless until we don't know the direction, we cannot find out his location. So direction is necessary. Moral of the story है, direction, we need direction. You know the direction in which the man has walked. Therefore, you can say that some physical quantity, which are called scalars, can be described with magnitude alone, because scalars can be described by magnitude because it has only magnitude. Whereas some physical quantities, which are called vectors, need to be described with magnitude as well as direction. दोनों भी vectors को अगर आपको describe करना है, you need both things, magnitude as well as direction. Getting it? In the above example, the distance traveled by the man is a scalar quantity, while finding the final position of the man relative to his initial position, that is his displacement, can be described by magnitude as well as direction and is a vector quantity. Now what are scalars? यहाँ पे कोई doubt है किसी को? ये 2.2 में किसी को कोई question? Please ask.
शाबाश, मेरे को आंसर आना चाहिए सबका। निधि, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Okay. जिसको भी नहीं समझा प्लीज आस्क. Now scalars, as we have already discussed, what are scalars? Which has only magnitude. Only magnitude. So 2.2.1 scalars, physical quantities which can be completely described by their magnitude are called as scalars. That is, they are specified by a number and a unit. For example, fundamental quantity का बात कर रहा हूँ, suppose I can say length of a particular rod. I can say this is a 5 meter. So phi is a number and m is the unit. So scalars हमेशा दो चीजों से denote हो जाते हैं, magnitude which contains a number and a unit. उससे हम लोग scalars को define कर सकते हैं. For example, when we say that a given metal rod has a length 2 meter, it indicates that the rod is 2 times longer than a certain standard unit meter. Okay, मुझे और एक क्वेश्चन याद आया पूछने को. एक क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे विराज. कितने टाइप की सिस्टम्स है अपने पास? कितने टाइप की सिस्टम्स है और कौन सी? फटाफट विराज, जल्दी बेटा. CGS, MKS, FPS और SI. करेक्ट, शाबाश. एसआई में क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल. उसमें क्या होगा? उसमें लेंथ, मास, टाइम किस में मेजर करेंगे? श्रुति, एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? श्रुति. Yes, sir. हाँ, चलो यार. श्रुति पार्टी, माइक अच्छा हो गया तेरा. एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? Foot, pound, second. शाबाश. वैष्णवी, सीजीएस में क्या होगा? centimeter, gram, and second system. शारिक, एमकेएस में क्या होगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम. ओके. श्लोक, एसआई सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? MKS. करेक्ट. और अभी हम लोग कौन सी सिस्टम यूज करेंगे? SI. आप लोग जब भी जितना भी पढ़ाई करोगे आगे जाके, यू विल ओनली फॉलो एसआई सिस्टम अनलेस अंटिल मेंशन्ड. अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम मेंशन किया है, वैसे तो मेंशन होगा नहीं, 99% देयर विल बी ओनली एसआई सिस्टम. यू हैव टू फॉलो एसआई सिस्टम. सो व्हाटएवर यूनिट्स आर गिवन, even if they are in centimeter, mm, gram, whatever it is, hours, you have to convert it into SI system. जब भी हम numerical solve करेंगे, whenever we are going to solve numerical, you have to convert all the unit into SI. अगर SI में दिया है, बहुत बढ़िया, very good. Otherwise, you have to convert all the units into SI system. ये याद रखना हमेशा. Okay, चलो back to the point. The number longer than a certain standard unit meter. Thus the number 2 is a magnitude and meter is a unit. ये 2 क्या है? यहाँ पे मैंने 5 लिखा है. 5 is a magnitude and meter is a unit. So thus number 2 is the magnitude and meter is the unit. Together they give us a complete idea about length of the rod. This is the length of the rod. This is a scalar quantity. So the length is a scalar quantity. Similarly, mass, time, temperature, density, etc. are the examples of scalar quantity. How density is a scalar quantity? Can anyone explain how density is a scalar quantity? Density is mass upon volume. Correct? Yes, sir. तो यहाँ पे उसने डेंसिटी स्केलर लिखा है. कैसे? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता मास और वॉल्यूम को. मास मतलब तो वैसे तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा m into a, तो मास और एक्सेलरेशन का भी तो कोई रिलेशन नहीं है, बट फोर्स इज स्टिल नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. सर रिलेशन नहीं, डायरेक्शन बोला, डायरेक्शन. अच्छा, डायरेक्शन, सॉरी. करेक्ट. सो वेरी गुड. तो यहाँ पे इसको भी कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं. अगर तेरे को मास मेजर करना है,
Very good. If you want to find out mass, you did not want direction. If you find out volume, तेरे को volume, ये दोनों भी magnitude ही है. समझ में आ रहा है क्या बात? बहुत अच्छा जवाब दिया भाई. That only required magnitude. They do not require direction. Measuring a mass, you need only magnitude. Measuring a volume, you need only magnitude. So density will only be magnitude. So that is why it is a scalar quantity. शाबाश यार. हाँ, आगे. Examples of scalars. Scalars can be added or subtracted by rules of simple algebra. चलो ठीक है. Simple algebra अपन ने पढ़ा है. कोई टेंशन नहीं. Now next topic is, इसमें कोई question? Anyone? कुछ चीज पूछना है, you can discuss. If you want to ask anything, please ask. पक्का? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. जवाब दो हाँ सब लोग. निधि, साई, शारिक, श्लोक, श्रुति, वैष्णवी and Viraj. If you have any question, I'm waiting for the questions or I'll move ahead. 2.2.2 topic is vectors. Now as we discussed, vectors are the quantity which has magnitude as well as direction. Their complete descriptions can be given by these two, magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, force. A vector can be represented by directed line segment or by an arrow. Arrow से भी denote होगा या ऊपर एक line बना देंगे तो भी चलेगा. Let us say P2Q. This is a vector. अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये P2Q जा रहा है, यहाँ से 2 मीटर मूव किया, वेक्टर PQ. ऐसा भी लिख सकते हैं या वेक्टर PQ ऐसा भी लिख सकते हैं. So this is the way to write vectors. A vector can be presented by directed line segment or by an arrow. Directed line segment or by arrow. ठीक है? This is the way to write a vector. The length of the line segment drawn to scale gives the magnitude of the vector. For example, मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिखा. This is 2 meter is the magnitude. And arrow is going towards my left. Okay, so magnitude as well as direction. The length of the line segment drawn to scale gives the magnitude of the vector. Example, displacement of a body from P to Q can be represented by P to Q, 2 meter, where starting point is called tail and the end point Q, arrowhead, is called as head of the vector. Starting point को हम हमेशा बोलेंगे tail, please underline करो, और इसको end point को बोलेंगे head. Starting point is tail and final point is head. Okay, is called head of the vector. Symbolically we can write PQ, vector PQ, और उसको PQ bar भी बोलते हैं बहुत बार. Symbolically, vectors are also represented by a single capital letter with an arrow above it. For example, X ऐसे भी लिख सकते हैं. Vector A, vector P, vector Q, we can write this way only, single letters. And magnitude of this vector is denoted by modulus बोल सकते हैं या magnitude बोल सकते हैं. Mod X, mod A, mod P, etc. This is how we denote the magnitude of any vector. इसका magnitude आप लिखोगे तो mod of PQ bar. हाँ, magnitude निकालने का formula भी आएगा बाद में, but this is notation how we are going to denote. Yes, any question? This is the basic thing about vectors, how we denote vectors, what are the symbol, how to write the vectors is covered in this small topic. Now we are going types of vectors. बोलिए, कोई question, कोई doubt? No, sir. बाकी के बच्चे लोग? No, sir. No, sir. आगे बढ़े. चलो, we are going Yes.
for types of vector. बहुत ध्यान से सुनना, अभी नहीं समझा उधर ही रोक देना. So we have types of vector, different types of vector. First one, zero vector or null vector. Types of vectors. First is zero vector और null vector. Simple बात आपको मैं समझाता हूँ. Zero vector which has a particular direction and zero magnitude. Zero magnitude but with a particular direction. Is called as a zero vector. अब आप मुझे ये बताओ एग्जाम्पल क्या होगा इसका. ट्राई कर सकते हो. सर अगर एक इंसान ऐसे ही बेड पे गिरा है फिर भी उसको डायरेक्शन है, वो मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ मूव कर रही है ना, तो फिर वैसा हो सकता है क्या? रिलेटिवली हो सकता है. मुझे और प्रिस्क्राइब्ड चाहिए. ठीक है, रिलेटिव है क्योंकि मोशन में तो अर्थ में मैं भी हूँ तू भी है, तो रिलेटिव हो गया ये. क्योंकि मैं भी नहीं मूव कर रहा हूँ तू भी नहीं. बचा हम लोग सब बस में बैठे हैं, बस मूव कर रहे हैं, हम मूव नहीं कर रहे, बट हमारा मोशन तो जीरो है. बस मूव करी उसके साथ हम भी मूव कर रहे हैं ना. सो वी आर इन द मोशन एक्चुअली. तो ये मैं नहीं काउंट करूंगा. मुझे जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है. सर अगर कोई आदमी तो घूम के फिर सेम पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो लेकिन वो घूम के आया ना, मतलब उसका वो वेलोसिटी या जो डायरेक्शन घूम के आके वापस बैठा. हाँ फिर ओके ठीक है आगे. तो फिर उसने जो डिस्टेंस कवर किया तो उसमें डायरेक्शन था, लेकिन नहीं मुझे मैग्नीट्यूड ही जीरो चाहिए. गुड ट्राई साई, बट और ट्राई करेंगे. वैष्णवी, शारिक, शुट्टी, विराज, ट्राई करो फटफट. सिंपल चीज समझो, मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए यार. मैग्नीट्यूड विल बी जीरो. तो फिर With a particular ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट माउंटेन बोलूंगा, उसको डायरेक्शन किधर है. चलो लेट इट बी. मैं आपको और बहुत इजी समझाता हूँ. रिलेटिव है ये भी. हाँ, अभी सपोज रॉकेट बराबर बिफोर, मतलब अगर वो इजेक्ट नहीं हुआ है और हम लोग दिवाली में जो रॉकेट लगाते हैं उसको बॉटल में रख दिया, लेकिन उसको मैंने जलाया नहीं, तो क्या होगा? वैसे ही खड़ा रहेगा, पॉइंटेड टुवर्ड्स स्काई. इसको मैंने आग नहीं लगाया, इसको जलाया नहीं है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? जीरो. लेकिन उसका डायरेक्शन है क्या? Yes, sir, of course. पर्टिकुलर डायरेक्शन. और एक सिंपल एग्जांपल, ट्रेन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विद द इंजन पॉइंटिंग टुवर्ड्स चर्च गेट और पॉइंटिंग टुवर्ड्स विरार. खड़ा है, स्टेशनरी है, मैग्नीट्यूड जीरो, लेकिन डायरेक्शन है. मेरे को मालूम है भाई ये चर्च गेट जाएगी या ये विरार जाएगी, बट एट दैट टाइम वो स्टेशन पे खड़ी है, मैग्नीट्यूड जीरो विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? आपके घर में, गैरेज में, जहाँ पे भी बाइक खड़ी है या कार खड़ी है, जाएगी सीधा. मैं रिवर्स नहीं लूंगा, रिवर्स का बात नहीं कर रहा हूँ. रिवर्स भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. बट अगर वो गाड़ी डायरेक्शन में खड़ी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन विद जब भी जाएगी तो आगे जाएगी, ऐसा मैं एज्यूम करूंगा कि भाई गाड़ी आगे ही जाएगी, देन ऑल्सो यू कैन से इट इज अ null vector or a zero vector. ठीक है. All this example gives train on a platform with a particular direction. All this example gives us the zero vector or null vector. Then we are
पॉइंट नंबर 2 रिजल्टेंट वेक्टर। और कुछ आपको पूछना है इसके अंदर? आपको एग्जाम्पल सेटिस्फाइड लगे? चलो, आपके एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम था वो भी समझ में आएगा और आपको ये एग्जाम्पल क्लियरली बताएंगे दिस इज अ जीरो वेक्टर, ओके, which has a particular direction. Now going on to point number 2, resultant vector. Resultant of a two vector or more vector is that single vector which produces the same effect as produced by all other vectors. इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। लेटर से ये एक बॉक्स मुझे मूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 लोगों को बुलाता हूँ मेरे जैसे, और ये बॉक्स को मूव करते हैं। हर एक का 10 न्यूटन फोर्स लगता है, ठीक है। एक ने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 20 न्यूटन लगाया, तीसरे ने 30 न्यूटन लगाया, और ये बॉक्स मूव किया। These are the 3 forces I used to apply to move this box. Instead, अभी मैंने सिर्फ टोटल इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 60 न्यूटन। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने क्या किया मालूम है, नेक्स्ट में एक ही फोर्स लगाया 60 न्यूटन का। अभी मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ेगा। मैंने क्या किया मालूम है, इसका रिजल्टेंट निकाला और सिंगल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। Resultant of this 3 is represented by only a single vector. Effect will be the same. इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम रहेगा। Getting it? अभी फिर से रीड करता हूँ, ध्यान से समझना। The resultant of 2 or more vectors, resultant of 2 or more vectors is that single vector which produces same effect as produced by all these vectors together. क्या बोलो? समझा सर? Yes, sir. हाँ बस बोलो, हाँ बोलो, मुझे बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। नहीं समझा तो आप बिंदास बोल सकते हो सर नहीं समझा। I can explain you again with some other example, no problem. Third is negative vector. Or we can say this is opposite vector. अभी एक सिंपल सा डायग्राम बताता हूँ, ये और ये हो गया ऑपोजिट वेक्टर। ये दो चीजों से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? व्हाट इज योर कंक्लूजन बाय seeing this diagram or seeing this vector? क्या हो सकता है, गेस Sir, करो। चलो, हाँ आवाज नहीं आया मेरे को। वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। डायरेक्शन आर अपोजिट, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? सेम है। करेक्ट, सब बस। तो मैग्नीट्यूड सेम, सिंपल अभी हो गया। देखो आप लोगों ने क्रैक कर लिया, सेम मैग्नीट्यूड, दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन opposite direction. They are called as negative vectors. Simple. A and B are negative vectors. So now what will be equal vectors? Maybe what will be equal vectors? If these are called as negative vectors, what will be equal vectors then? They both will be having same direction and magnitude, same magnitude. शाबाश। So दोनों चीज बोलना है, same magnitude, same direction, शाबाश। So they are called as what? Same magnitude and same direction. शाबाश Nidhi, very good. So this is how simple physics is, and still we are afraid of physics. बोलो, position vector। बताओ श्लोक क्या आएगा पोजीशन वेक्टर? एनी आइडिया, एनी गेसेस? Vector which is in the relationship with particular position. और डिटेल में, ठीक है। मतलब उस पोजीशन से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर हमको समझेगा, मतलब एक एग्जांपल दे सकता है तो मुझे जल्दी समझ में आएगा। साई, वैष्णवी,
Can you give example of a position vector according to your understanding? I don't want the textbook answer. I want your understanding. क्या समझ में आया आपको? जैसे ये आपको समझ में आया, ये भी आपको समझ में आया. Then what will be this? सर हाँ बोल. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल दे सकते हैं हाँ क्या? कोई भी एग्जाम्पल, मेरे को कोई भी एग्जाम्पल दे, तेरे दिमाग खुलना चाहिए बस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जीरो होता है वो ओरिजिन. ओरिजिन होता है, उस पोजीशन से के रिलेशनशिप से सब कुछ होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव समझता है. ओके ठीक है, समझा. चलो नेक्स्ट गर्ल्स ट्राई करेंगे. कौन बोल रहा है? सही, विल यू आंसर? और वैष्णवी? सर एग्जाम्पल नहीं पता. एग्जाम्पल नहीं पता. ओके हाँ. बेसिकली एक पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन ओके जो कांस्टेंट रहता है हम ओके आई गॉट इट. ओके क्वांटिटी मेजर करते हैं. समझा. ओके नेक्स्ट मेजरमेंट स्केल वैष्णवी. ले सकते हैं. कुछ भी जीरो ले से सकते. You give me an measurement scale. example. You give me an example. I'm not very much concerned about. Yes, sir. For example, नंबर लाइन जैसे होती है, जीरो से राइट साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव पोजीशंस की मिलेंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव मिलेंगे. ओके ओके ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक हिंट देता हूँ. यू कैन फॉर्म एग्जांपल. You can form example with respect to that. Earth. I'm giving you example of Earth. Now tell me in relation of position vector. इन अर्थ का अगर हमने कोर के बारे में सोचा तो फिर हम कोर से दूर जाते हैं या फिर कोर के नजदीक आते हैं. ओके मतलब कोर को अगर मैं सेंटर लूंगा तो ज्यादा इजी वे में बताऊंगा. लेट अस से सेंटर ऑफ द अर्थ. हाँ अभी बता. सेंटर ऑफ द अर्थ के हम नजदीक जाते हैं फिर दूर जाते हैं और इससे हमको सारा डायरेक्शन पता चलता है. ओके ठीक है. शारिक क्या अंडरस्टैंडिंग है? शारिक बोल. एग्जाम्पल तो नहीं आता सर. हाँ कोई बात नहीं. अगर मैंने आपको बोलता पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ तो क्या आप बता? चलो मैं बताता हूँ आपको. लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट नाउ. पोजीशन वर्ड ही इंपॉर्टेंट है आपको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. कोई भी चीज अगर हम पोजीशन वर्ड बोलते हैं then we should know the initial point. Now let us stick to the origin. With respect to origin we will define the position. Now एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है स्पेस में या xy प्लेन में या yz प्लेन में या किधर भी, a particle is moving in a x, let us say this is in a xy plane and a particle is reached here. बराबर. तो मुझे इसका पोजीशन मिलेगा with respect to origin. Can I find the position of the object after time t? Can I find the position of the object with respect to origin? Or I cannot find? Hello, alpha to delta. Can I find the position of the object with respect to origin? अगर मैग्नीट्यूड पता होगा तो फिर हाँ सब पता है. जो चाहिए सब Yes, पता है. sir. तुमको जो इनपुट चाहिए, एंगल भी पता है, पोजीशन भी पता है, कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मुझे आप बताओ उसका पोजीशन निकाल सकते हो क्या आप? निकाल सकते हो. Correct. So we can find out the position of the vector after 100 hours, after 1000 hours, after 1 lakh hours. You can find the position of the object. बराबर? Getting it? Similarly, I can find. Can I find the position of the Earth after 365 days? यस सर. कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. अर्थ की पोजीशन मुझे, मैं 100 साल का अगर बाई चांस हो गया तो भी मुझे पता चलेगा अर्थ का पोजीशन क्या होगा. हाँ. Yes, बराबर है. sir. तो जो चीज का पोजीशन आपको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पता है या पता होगा, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर. ऑब्वियसली आपको जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो मिलेंगे. सो दिस आर द टू एग्जांपल. और एक सिंपल एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग ऑन माय बाइक विद 50 किलोमीटर आवर का स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली. एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. लेटस से मेरा स्पीड कभी कम नहीं होगा. 50 किलोमीटर पर आवर से ही जाऊंगा लाइफ टाइम. पॉसिबल नहीं है बट आप समझो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ मैं.
तो मैं 2 घंटे के बाद कितना किलोमीटर मेरा पोजीशन क्या होगा? 100 किलोमीटर इन 100 किलोमीटर, करेक्ट. आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा? 500 किलोमीटर. 500 kilometers. After every particular time, can you or can my parents or can my relatives are able to locate my position with Yes, respect sir. to origin? Yeah, with here origin will be my home. So this is called as position vector. कि आपको हर point of time पे उसका position पता होगा. That vector is called as position vector. I am reading this. A vector which gives the position. A vector which gives the position of a particle at a point with respect to origin of a chosen coordinate system is called as a position vector of the particle. Now suppose this is O and this is P. तो OP मुझे मिल गया उसका position vector. Here vector OP is the position vector. Example मैंने और दिया यहाँ पे diagram पे OP vector is the position vector. Yes, any doubt? अभी समझ में आ गया exactly क्या है ये? And एक बचा है यहाँ पे लिखता हूँ देखो. 6th one is unit vector. Unit vector, unit is 1. So whose magnitude is 1? And direction is a particular direction. Particular direction. Magnitude equals to 1. And in with a particular direction. Is called as a unit vector. Unit is 1. Okay. बोलिए क्या डाउट? यूनिट वेक्टर को नोटेशन आएगा कैप, यू कैप बोलेंगे उसको. यूनिट वेक्टर ऑफ, यू कैन से यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय यू कैप. कैप मतलब एक एरो हेड है ऊपर ऐसा एरो. दिस इज डिनोटेड, दिस इज साइन ऑफ यूनिट वेक्टर. चलो लिख लो ये फटफट. यूनिट वेक्टर में और भी आगे अपन लिखेंगे. बस राइट डाउन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. देयर आर 6 types of vectors. First is zero vector, resultant vector, negative vector, equal vector, position vector and unit vector. ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. This is just for your understanding. Read the textbook, read the target or whatever you have bought for writing the answer in the question paper. Also those who are giving NEET, please start reading NCERT textbook, 11th standard CBSE NCERT textbook of the same topic. हो जाएगा तो बोलना. सर आप एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे तो? एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा मैं उसके एमसीक्यूज लूंगा सिर्फ. उसमें जो अलग चीज होगी, जो शॉर्टकट्स होगी वो मैं बता दूंगा. फॉर एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा 1-2 टॉपिक अलग है, तो I'll explain that particular part which is going to be used for MCQs. ओके. एनसीईआरटी पढ़ाने जाएंगे तो दो बोर्ड एक साथ नहीं होएगा. Either we have to follow NCERT, either we have to follow boards. आपको दोनों करना है. If you are very focused कि भाई आपको नीट क्रैक करना ही है at any cost, then you have to follow both. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 20% डिफरेंस.
you will find 20, 25, 30% of difference in both 11th and 12th मिला क्या, ज़्यादा difference नहीं है. जैसे मैं आपको बोला था, अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर लिया था, सो उसके अंदर लिस्ट काउंट का जो पूरा टॉपिक था, which was there in NCERT, but it is not there in our state board. So that is why we find it difficult. List count, Vernier caliber, screw gauge, these are there in NCERT book. हो गया, आगे बढ़े. आगे बढ़े सर. चलो, सबका हो गया. Yes, sir. ओके, अभी यूनिट वेक्टर को ही कंटिन्यू करते हैं. यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय यू कैप. सपोज दैट इज अ वेक्टर m of magnitude m bar. Then how to find out unit vector? This is very much important. ये 12th में भी आएगा वेक्टर्स में, मैथ्स में भी आएगा वेक्टर्स में. Now, suppose we have a vector m whose magnitude is m bar. Now, can I say m bar is unit vector? Unit vector is magnitude is 1, huh? So can I say m bar equals to um? Um is unit vector of m into m. बोलिए. Or to be very precise, you put this. So you can say um magnitude is m bar upon m. This is the formula to find out unit vector of any vector. मैंने m vector लिया है. m vector है जिसका magnitude m bar है. m vector है जिसका magnitude m bar है. तो मैंने unit vector का magnitude होता है 1. तो m bar का magnitude को मैंने 1 into magnitude of m किया. तो it will be same because this here has the unit of 1. So I multiply 1 with any number, that will be no change because 1 multiplied by m bar is m bar only. तो यहाँ पे मैंने unit vector को multiply कर दिया. So um equals to m bar divided by m. ये unit vector निकाला किसका? m vector का. सर वो यूनिट वेक्टर के यू के ऊपर जो डैश हो क्या है? कैप, यू कैप बोलते हैं उसको. यू कैप एरो, इसको एरो. ये नोटेशन है यूनिट वेक्टर का लिखने का तरीका. यू कैन नॉट राइट दिस बिकॉज दिस इज वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर इज हैज अ स्पेसिफिक साइन. आपको यही लिखना पड़ेगा. यू कैप बोल सकते हो आप. ओके सर. अभी सपोज हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस is I cap. Unit vector along y axis is j cap, and unit vector along z axis is k cap. ठीक है. So you can say x axis का magnitude x bar लेते हैं. So I cap is vector x upon mod x. J cap is vector y upon mod y, and k cap is vector z upon z cap. बोलिए श्लोक क्या बोल रहा था? सर लेकिन मतलब फाइनली यूनिट मतलब वेक्टर m का यूनिट वेक्टर भी 1 ही होगा ना? नहीं, नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल अगर मैं तेरे को बोलता हूँ 3 है, अभी ये थोड़ा बाउंसर जाएगा बट समझने की कोशिश कर.
ये थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, 3 और 4, सपोज इसको एम ही लेता हूँ मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ पॉसिबल। ये x, ये y, ये z, ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, बट तूने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताता हूँ। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, y का 3, और z का 4। तो अगर ये ओ एम वेक्टर एम लेता हूँ बराबर, तो आएगा 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। और भी इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4 + 9 + 16 आ गया 29। तो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर इज मॉड m, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29। अब कैसे सर हुआ? लेकिन आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऐसा कैसा होगा? डिस्टेंस निकाला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, ओ ओके, गॉट इट, समझा सर। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. So this is how we find out unit. But ये अभी है नहीं, उसने अगर क्वेश्चन पूछा तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ये नेक्स्ट उसके अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then vectors operation 2.3. Vector operations. So we have multiplication of a vector. Multiplication of a vector by a scalar. Simple, एकदम simple है। Now let us say multiplying vector p by a scalar quantity s yields to another vector. अगर मैं कोई वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, मैंने आपको कुछ पैसे दिए तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसको मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नया वेक्टर बन जाएगा। सो वेक्टर p को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर s से, तो नया वेक्टर मिलेगा q बार इज इक्वल टू s इज अ स्केलर इनटू p बार। q will has the same direction as of p but has a magnitude s times greater than p. Getting it? एक सिंपल और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वेक्टर p is 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड स्केलर s, देखो क्या इजी है, is 2. So we have to do 2 into p bar. Q bar is equal to 2 into p bar. So 2 into 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. 2 2s are 4i cap, 6j cap plus 8k cap. This is called as scalar multiplication. Simple, हम समझ में लेंगे कि खाली इसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से। वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, तो एवरी कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड लिए। समटाइम्स सिर्फ एक्स होगा, समटाइम्स वाई होगा, समटाइम्स जेड होगा, या एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या एक्स जेड होगा, या तीनों भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर विथ एवरी वेक्टर। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये जैसा हम बचपन से करते आएंगे वैसे ही है। A particular component is added or subtracted with a particular component only. Suppose तेरे को p बार और q बार देके रखा है,
बहुत इजी है। पी बार देख के रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस 3k कैप, एंड क्यू बार इस देखे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फर्स्ट में तुझे करना है p बार प्लस q बार वेक्टर एडिशन, i विथ एडेड विथ i, 2i प्लस i हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 2k, सिंपल। और अगर तुझे सब्ट्रैक्ट करना है i माइनस 2i माइनस i प्लस j प्लस 4k। अगर मैं इसको स्केलर मल्टीपल भी पूछूं आपको अगर अगर तीसरा एग्जांपल सॉल्व 2p बार प्लस 3q बार, तो क्या करोगे आप? Then you multiply p bar with 2, q bar with 3 and then add. Getting it? I cap plus 2j cap plus 3k cap plus 3 into plus 3 into 2i cap plus j cap minus k cap. क्या आंसर आता है बता? This is how we add vector 1 and vector 2 or subtract. सेम डायरेक्शन में जाता होगा तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, नहीं तो जो बड़ा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन में जाएगा। और सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दिस इज सपोज 5 and this is 7, तो आंसर ऑफ एडिशन विल बी दिस विल बी एडेड बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन and resultant magnitude will be 12 going in this direction. But suppose if this is 5 and this is 7, then it will be subtraction and with only magnitude of 2 unit will go towards this. बोलते ना साइन ऑफ अ बिगर नंबर, वैसा ही साइन ऑफ अ बिगर नंबर जैसे ही कंसेप्ट है यहाँ पे। the only thing will be direction of a bigger vector, and more precisely this is the addition and subtraction. And यहाँ पे we can add with the same direction, subtract if it is in the opposite direction. Now question आता है कि सर डायरेक्शन सेम भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है, इंक्लाइंड है, तो कैसे ऐड किया जाए? तो उसका भी आंसर आएगा आगे। That is given by triangle law for vector addition. We will add the two vectors by triangle law if they are not parallel or anti-parallel. Write this down and इसका आंसर बताओ। और क्या क्वेश्चन है पूछो। सर किसका आंसर बताने का है? ये सॉल्व करना है ना, ये मैंने सॉल्व किधर? 8i cap plus 7j cap plus 3k cap. 8i cap plus 7j cap plus 3k cap plus 3k cap. Yes, ये भी लिख लो। हाँ, if they are parallel and in the same direction, vectors are added and direction will be same. If they are anti-parallel, they are subtracted, magnitude are subtracted, and the direction of the bigger vector of the bigger magnitude will be the answer. Resultant will follow the direction of bigger vector. जैसे हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, so we are assuming they are in the same direction, correct?
हो गया? हाँ Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, नहीं है टेक्स्ट बुक तो प्लीज टेक्स्ट बुक ले लो, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम eBalbharti. All textbooks are available. Soft copy or hard copy you need at least for physics and chemistry. Without textbook difficult जाएगा। Sorry, page number 29. Question number 2. Answer the following questions. Question number 1. Show that A bar is I cap minus J cap by root 2 is a unit vector. कैसे करोगे बताओ? यूनिट वेक्टर मतलब क्या? बेसिक डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं इसको, शाबाश, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√2 ऑफ आई कैप माइनस 1/√2 ऑफ जे कैप। सेपरेट कर दिया। उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x² प्लस y² प्लस z² है नहीं इधर, ठीक है। x कॉम्पोनेंट है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ये बीच में माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली माइनस का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। 1/2 प्लस 1/2 √1 is 1. So magnitude of A bar equals to 1. Therefore A bar is a unit vector. Simple. सर बोलिए। इसको एक और बार समझाओ ना, मेरे को नहीं समझा। शाबाश। 1/√2 ले लिया, सेपरेट कर लिया 1/√2। वो I पहले cap- आई कैप है ना, आई I कैप cap. माइनस जे कैप अपॉन √2। हाँ फर्स्ट स्टेप में हाँ पूछ लो। हाँ। I cap minus J cap upon √2, ये क्वेश्चन ही दिया। I cap along x axis, J cap along y axis. We don't have K cap तो लिखा नहीं है। तो 1/√2 ऑफ I cap, ये सेपरेट 1/√2 दोनों को सेपरेट कर दिया, माइनस 1/√2 ऑफ J cap. So x Okay. component मेरा 1/√2, y component minus 1/√2, x component 1/√2, y component minus 1/2, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 का रूट निकालोगे तो 1, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ओके सर। या चलो लिख लो, आराम से लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। V1 cap is 3i plus 4j plus k, 3i plus 4j plus k, and V2 is I minus j minus k, I minus j minus k, V1 plus V2। ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, क्या इजी है देखो। और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एंड मॉड ऑफ V1 प्लस V2, V1 plus V2 and mod of V1 plus। Five answer. शाबाश।
सर फर्स्ट वाले में मगर वो आई कैप और जे कैप इधर चला जाता है। ये फॉर्मूला में आई कैप एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, जे कैप वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है. ओके So only we take magnitude, not the direction. When we are find out magnitude, we are not related or we are not concerned with I cap and J cap. We are only concerned with the magnitude of I cap and magnitude of J cap. समझा? यस सर। Tell me the answer of this and magnitude of this also. ये हो गया first sum is done. शारिक first हो गया बेटा. यस सर। सेकंड चालू करो, उसका magnitude भी बताओ, एडिशन भी बताओ and magnitude भी बताओ. One two I cap minus 3 J cap and V2 minus 6 I cap plus 5 J cap. The magnitude and direction of direction में बताता हूँ. You can find out the magnitude. सर सेकंड वाले में वो आंसर उसका 4 आई कैप और प्लस 3 जे कैप है। करेक्ट. और उसका मैग्नीट्यूड निकाल. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जेड होगा तो डालने का, नहीं तो जीरो होगा तो छोड़ देने का. So this is 3 I cap plus शाबाश. थर्ड वन ट्राई करो. I cap J cap K cap प्लस के माइनस के गया. 3I प्लस I हो गया 4I, 4J माइनस J हो गया 3J. So Z is nothing. यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. करेक्ट. 16 plus 9, 25, which is the 5 answer. So this is easy. So this is how to add or subtract the vectors. One more thing, direction. ये मैं बताता हूँ आपका. मुझे इसका भी magnitude और direction निकालो. Magnitude निकालो. Sir, root of 20. Root of 20 आया magnitude. हाँ तो 2 root 5 लिखो ना भाई. हाँ 2 root 5 भाई. शाबाश. अभी उसका डायरेक्शन कैसे निकालना बता दो. 2I cap minus 3J cap minus 6I cap plus 5J cap. 2I cap minus 3J cap minus 6I cap plus 5J cap. 2I minus 6I minus 4I plus 2J. Correct? V1 plus V2. So mod of V1 plus V2 root of x square plus y square minus 4 square plus 2 square mod of V1 plus V2 minus 16 plus 4, which is root 20. You can write 4 5s are. So this is 2 root 5. Correct? Now how to find direction of? ध्यान देना.
direction of v1 plus v2, which is v1 plus v2 का आंसर है -4/2, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ना, is equal to tan theta, which is y upon x. y कोऑर्डिनेट क्या है तेरा, 2/-4 -1/2. So you can say theta equals tan inverse of -1/2. इनवर्स क्यों, मतलब वो साइड चला गया, इसके लिए रेसिप्रोकल बोलते हैं, ये भी आपको मैथ्स में आएगा. अच्छा, tan थीटा ही क्यों लिया मैंने, सपोज ये वेक्टर है बराबर, ये एंगल है थीटा, ये पोजीशन है तेरा v1 प्लस v2 बराबर. ये एंगल निकालने के लिए तेरे को दो साइड का जरूरत है, ये y और ये x, तो ये y और x तेरे को tan थीटा से ही मिलेगा. So always find out direction with the help of tan theta, opposite upon adjacent. और फिर यहाँ पे tan थीटा है, tan को वो साइड डाल दिया which is reciprocal, tan वो साइड जाएगा डिनोमिनेटर में. So I can write tan raised to -1, उसको मैं पढ़ूंगा tan inverse. So theta equals to tan inverse of -1/2. इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो मैथ्स में आएगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एंड ये डायरेक्शन हमेशा हम किसके साथ है, एंगल ये किसके साथ है, एक्स एक्स के साथ है ना. दिस एंगल इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखना है विथ एक्स एक्सिस. ऑलवेज टेक एंगल ऑलवेज विथ एक्स एक्सिस. हाँ, बोलिए, प्लीज आस्क. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इनवर्स ट्रिगो मैंने को कुछ समझा नहीं. कौन सा? इनवर्स ट्रिगो वो मैथ्स में आएगा बेटा. ये यहाँ ये समझा क्या, ये पार्ट समझा क्या? वो समझा. बस फिलहाल अपने को यही काफी है. मतलब if you want to find out tan inverse of -1/2, you can find out. ऐसा I mean to say that this angle can be found out. ये incomplete answer है. This theta should be in degree or radian, but we have kept here as tan inverse of -1/2. This can be found out using inverse trigo functions, but सर अगर ऐसा छोड़ दिया तो मार्क्स जाएंगे. अरे नहीं भाई, ये इतना ही रिक्वायर्ड है फिजिक्स में, वही मैं बोल रहा था. देखो आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें भी यही आंसर दिया होगा. हाँ यस सर, यही आंसर दिया है. ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. यू कैन फाइंड आउट दिस बिकॉज दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर. यू कैन सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे. इफ यू नो व्हाट इनवर्स ट्रिगो, देन यू कैन फाइंड आउट दिस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कंप्लीट आंसर है. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v bar. v bar को पैरेलल है एंड i cap -2j cap and has a magnitude 10. Vector parallel to v bar. चलो पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड निकालो. v कैप इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 + 4 आएगा √5.
ठीक है, तो यू वी कैप unit vector which has magnitude 1 is v upon mod of v, correct? V is I cap minus 2j cap upon root 5. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अभी मुझे बताओ, हर वेक्टर अपने आप को पैरेलल होते हैं? Is a vector is parallel to itself? सर वो आपको यू कैप लिखना है क्या? नहीं, वी ना, ये वी कैप्टर, वी का यूनिट वेक्टर तो वी कैप आएगा ना। नहीं, यू कैप और उसके नीचे ऐसा वी का साइन आएगा ना, आपने बाद हाँ, पहले लिखा। उससे भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू वी ये भी लिख सकता है। अभी उसने बोला है कि ये वी कैप लिखा तो भी चलेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वी कैप। अभी मेरा क्वेश्चन है, अपने को पैरेलल निकालना है। सो वेक्टर वी इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी वेक्टर अपने आप को पैरेलल होएगा या नहीं होएगा? सर सेम लाइन खुद को पैरेलल कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो लाइन अपने आप को सर बिकॉज रेप्लिका, पैरेलल लाइंस डोंट टच ईच अदर ना, फिर अगर वो एक ही लाइन है तो टच करेगा कुछ को। भाई मेरे, अभी समझना, ये दो लाइन है पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे को पैरेलल है। अभी आप किस तरीके से देखो, ओवरलैप हो गया ये। लेकिन फिर तो सर जेड एक्सिस भी आ गया है। ये सिर्फ मुझे ये बताओ, ये दोनों कोइंसाइड हो गया तो ये पैरेलल हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ओवरलैप हो गया, कोइंसाइड हो गया। सो एक ही वेक्टर का अगर मैं पैरेलल निकालूंगा, इधर से मैं दूसरा वेक्टर बाहर निकाला इसके पैरेलल, और या तो उसको अंदर डाल दिया, तो वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी एक्सिस होने दो, मैं सिर्फ ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमको पैरेलल वेक्टर बोला जाता है, दैट मीन्स द सेम वेक्टर बट विद अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सो उसने मैग्नीट्यूड कितना बोला है यहाँ पे? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो सेम ही आएगा। So now what we need to do, this is a unit vector which has magnitude 1. So for magnitude 10, I have to multiply it by 10. Vector parallel to v cap, v bar, and of magnitude 10 is given by, जो अपना आंसर आया उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। 10 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आई कैप माइनस 20j कैप अपॉन रूट 5। बोलिए। सर 10/√5 आई कैप। करेक्ट, सेपरेट कर दो उसको। 10/√5 आई कैप माइनस 20/√5 j कैप। हाँ क्वेश्चन 2 के 4 सम खत्म किए हैं अपन ने टिल नाउ। क्वेश्चन 3 के 5, 6, 7 खत्म किए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, डुप्लीकेट ना हो फिर से। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3, 4 is done. Question number 3, 5, 6 and 7 is done. So while solving the exercise, we'll not solve this again. We have already solved this. Okay. बोलो, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज है जो दिमाग में नहीं जा रही है? प्लीज आस्क। From next lecture we'll start triangle law of vector addition, most important triangle law of vector addition, law of parallelogram, ये आपको आगे भी काम आएंगे in 12th also, in maths also. Don't miss, sorry, don't miss the next lecture बाबा। दोनों लॉज आएंगे, दोनों लॉज का डेरिवेशन आएगा।
चलो हो गया। अभी थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हो गया क्या? लिख के बताओ पहले। इज दिस डन? यस Yes, सर। sir. Done, sir. चलो सबका हो गया गर्ल्स? Yes, sir. Yes, चलो sir. लेट्स अभी रिकैप मारते हैं। आज के दिन में जो जो पढ़ा उसका मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट आर वेक्टर्स। निधि, व्हाट आर वेक्टर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेक्टर्स? Yes, sir. Vectors have magnitude as well as direction. करेक्ट, शाबाश। श्रुति, व्हाट आर स्केलर्स? श्रुति, श्रुति आवाज नहीं आ रहा है यार। सही, व्हाट आर Yes, स्केलर्स? sir. Scale. चलो ठीक है। देन शारिक, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में व्हाट इज जीरो वेक्टर? शारिक, व्हाट इज जीरो वेक्टर? सर जीरो वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड। बिना देखे चाहिए, पेज नहीं घुमाने का। चलो, यस सर। जीरो वेक्टर is जीरो which has मैग्नीट्यूड होता है, and one arbitrary पर्टिकुलर डायरेक्शन। correct, perfect. Next, resultant vector श्लोक। resultant vector जब दो और तीन वेक्टर्स को एक वेक्टर के तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तब वो एक वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देना, सेम एग्जाम्पल नहीं देना। गिव मी अदर एग्जाम्पल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक बॉलर का फोर्स और एक विंड का फोर्स, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जो फाइनल बॉल का डायरेक्शन होता है ऑफ मूवमेंट। करेक्ट, दोनों फोर्स का एडिशन होगा जो इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इज वैष्णवी, नेगेटिव वेक्टर। Yes, sir. Negative vector मतलब magnitude same होता है but direction opposite. विराज, इक्वल वेक्टर। Same magnitude and same direction. क्या बात है। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। आगे सब लोग यस। निधि, पोजीशन वेक्टर। निधि, कैन यू हियर मी? Yes, hello. Ah. Yes, sir. हाँ, पोजीशन वेक्टर। It tells the position of a particular object from the origin. शाबाश। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। शारिक, यूनिट वेक्टर, द लास्ट वन। द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है in a particular direction. If magnitude is 1 in a particular direction, then it is said to be a unit vector. यूनिट Sai, वेक्टर। what are the unit vectors for x axis, y axis and z axis? I cap, J cap, and K cap. Sabash, very good. But then we have seen addition and subtraction of the vectors, and we have seen the numericals. So that's all. Today we have seen this. In next lecture we will see how to add vectors if they are not parallel or anti-parallel. So that is given by triangle law. So in next lecture we'll start with triangle law. Okay, just go through this 2 textbook. One is your boards and one is your NCERT. Okay, Okay, sir. chalo. Thank you, sir. Bye. Sir. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Bye, sir. Bye. Bye.